Okay, friends, I think we are ready to move on to the next thing. Did you have any problems with this practice, with this conversation? Team Lara conversation? No, sir. There are many ways we can make suggestions. Why don't you? We could. Let's do this. Shall we do this? I would like to do this. And now, carrying on with our present perfect idea. The other day, we learned that present perfect is used to talk about our experiences. But if we talk about the details of the experiences, then which tense do we need? Please tell me. Have plus with way. Yeah, that is called the present perfect. Perfect tense. But Faizan, my question is something else. My question is, when we talk about our experiences, we use the present perfect, has, have, plus V3. But when we talk about the details of the experiences, then Then sir, past, simple past tense, sir. that's the important point. And everybody should remember this. Tani, remember this in your mind. Yeah. Simran, Zeba, ये हिंदी से मैच नहीं करती ये बात कई बार ये हिंदी से मैच नहीं करेगी ये बात. But remember this rule. If you are talking about your experiences, use the present perfect. But when you are giving the details of the experiences, use the past simple. Now, keeping this rule in mind, we are going to have some practice. Did you already do this? In a breakout room, you guys ask each other, have you ever been to this place? Have you ever been to that place? And when they say yes, then you ask, when did you go? Where Yes, did you I go? have. Who did you go No, I with? haven't. Yes. शुरू में तो yes I have, no I haven't बोलेंगे. No I haven't में का क्वेश्चन बनता नहीं है बहुत ज्यादा. लेकिन yes I have you ever been to Banaras? Never. Yes, I have. When did you go, Tani? I went there. I went there 2 years ago, sir. Where did you go? Uh, I went to. I went to Varanasi, near the Kashi temple. Okay. And who did you go with? I went with my papa and my younger brother. Ah, I see. Did you enjoy your experience there? Yeah, It was fun. yeah, it's So one. this is English. Yeah. Have you already done this practice with each other? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. Okay. 2 days ago. Okay. तो अपने बारे में बताओ. Tell me about your experiences one by one. First, I will tell you, okay? So that you learn how to do it. So my answer, okay. I have never been to Mumbai, but I have been to Kolkata. I have been there several times. The last time I went to Kolkata was 2 years ago. It was for my cousin's wedding. I went there to attend my cousin's wedding. I really liked the city, the roads, the people. It's really beautiful. I wouldn't mind living in Kolkata and learn Bengali. Bengali is a sweet language. Um,
No, I don't actually. I don't speak Bengali. Only Kemon ache, kaise ho? Uh, how are you? And some abusive words in Bengali, I know. Like what? What can you say? हम घर नहीं जाएंगे. কি করছিস? কি করছো is respectful, and when you talk, क्या कर, that's what I'm saying. It is respectful, and if you're talking to someone younger, then you say কি করছিস? If you're talking to someone younger, then you say কি করছিস? And if you're talking to someone older, respectful, then perhaps কি করছো? Okay. My auntie, my papa's brother's wife, my chachi, is from Bengal. Okay, she grew up in Bengal. She speaks Bengali fluently. So many times I've heard her speak Bengali. And yeah, I have a fascination for Bengali culture. I like Bengali culture very much. Women in Bengali culture are very independent, bold, independent, frank. They are not very shy, and that attracts me towards them, the boldness about them, the way they communicate, you know. They are not like Bihari, women. They are more bold, I will say, confident. And confidence is a very attractive thing for me. Okay. Okay, so I told you about my experience with Kolkata. Okay. I have been to Rajasthan as well. I went to Jaipur maybe 10 years ago, and I saw the palaces, the castles. I bought some sarees from there for my mom and wife and Bhavi and sister. It's a nice place, Jaipur. I really like the way people talked. Their Hindi was beautiful. I saw a boy and a girl, they were brother and sister at a shop, and they were having an argument. They were having an argument, and they were talking to the shopkeeper, but they were having an argument with each other, not with the shopkeeper. Okay, both of them were trying to get the support of the shopkeeper that they were right and the other one was wrong. Uncle, मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं uncle, मैं सही बोल रही हूँ ना? Like that they were talking. Okay, they were having an argument with each other. I felt like, recording their conversation, I felt like I was watching a movie, and it was a movie scene, the way they were talking, and the body language and everything. I like Jaipur very much. Again, it's a nice place to live, I think, Jaipur. Yes. I've been to Jharkhand as well. I went to Ranchi there, and I went to Bokaro. It was a long time ago. देखा, मैंने एक बार बोला कि मैं झारखंड गया हूं, फिर मैंने उसके बारे में डिटेल्स देना शुरू कर दिया कि हम रांची गए थे, वहां बोकारो भी गए, ठीक है ना, और वहां हमने ये देखा, वो देखा, इसलिए गए थे, उसलिए गए थे, कब गए थे. ऑल दीज थिंग्स आर इन द पास्ट सिंपल. तो एक्सपीरियंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट. जो आप बताना चाह रहे हो कि इस बात का अनुभव है हमको, हाँ हम गए हैं, झारखंड गए हैं, हाँ हम रांची गए हैं, हाँ हम बोकारो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है. लेकिन जब डिटेल्स है पास्ट का, तो वो पास्ट सिंपल होगा. डिटेल्स है एक्सपीरियंस का, तो पास्ट सिंपल में होगा. एक ही बात दोनों तरीके से बोली जा सकती है. जैसे आई हैव बीन टू बोकारो भी बोला जा सकता है, आई वेंट टू बोकारो भी बोला जा सकता है. अलग अलग सिचुएशन में जहां मुझे बताना है कि मेरे पास बोकारो जाने का अनुभव है, तो मैं ये बोलूंगा आई हैव बीन टू बोकारो. लेकिन अगर वो मैं डिटेल दे रहा हूं, उसमें बता रहा हूं कि मैं बोकारो में था, तो आई वेंट टू बोकारो हो जाएगा. मेरी बात सुनो. मैंने कहा तुम्हें आई हैव बीन टू झारखंड, तो तुमने कहा वेयर डिड यू गो इन झारखंड? क्या पूछे तुम? तो मेरा जवाब होगा आई वेंट टू बोकारो.
मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा आई हैव बीन टू बोकारो, इस जगह पर नहीं बोल सकता, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं अपने एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस क्या, डिटेल बता रही हूँ। एक्सपीरियंस क्या था मेरा, झारखंड जाने का। मैंने पहले कहा तुमसे आई हैव बीन टू झारखंड, मैं झारखंड गया हूं। तो तुमने मुझसे पूछ दिया कि कहाँ गए थे झारखंड में, गिव मी द डिटेल, डिटेल मांगने लगे आप। तो कैसे पूछेंगे कहाँ, वेयर डिड यू गो? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता आई हैव बीन टू बोकारो बोल के। इसका जवाब मैं दूंगा आई वेंट टू बोकारो। इस जगह पे आई वेंट टू बोकारो सही है। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कन्वर्सेशन कहाँ शुरू हुआ, आई हैव बीन टू झारखंड। दूसरा लाइन किधर गया, वेयर डिड यू गो इन झारखंड, आई वेंट टू बोकारो। समझ में आ रहा है कैसा फ्लो है? अब दूसरा कॉन्वर्सेशन सुनो, दूसरा कॉन्वर्सेशन सुनो, जहां बातचीत शुरू कहीं और होती है। विच सिटीज हैव यू बीन टू इन योर लाइफ? ठीक है दोस्तों, किसने मुझसे पूछा विच सिटीज हैव यू बीन टू? मैं कहूंगा आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू चेन्नई, आई हैव बीन टू कोलकाता एंड आई हैव बीन टू बोकारो। यहां पर मैंने आई हैव बीन टू बोला है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, नॉट द डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस। क्योंकि सवाल क्या था मुझसे, विच सिटीज हैव यू बीन टू? कौन कौन से शहर जाने का अनुभव है आपके पास, कौन कौन सा शहर गए हैं आप लाइफ में? यही है ना क्वेश्चन। तो बताइए कौन कौन से शहर आप गए हैं, ये अनुभव के बारे में है कि अनुभव के डिटेल्स के बारे में है? कौन कौन से शहर हो अपने लाइफ में आप विजिट किए हैं? किस चीज के बारे में सवाल है, अनुभव के बारे में कि अनुभव के डिटेल्स के बारे में? आप कौन कौन सा शहर अपने लाइफ में घूमे हैं, आप कौन कौन सा शहर अपने लाइफ में घूमे हैं? ये कौन सा सवाल है? नहीं समझ में आ रहा? मैं बताता हूँ, अनुभव के बारे में नहीं है, अनुभव के डिटेल्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कौन कौन सा शहर जाने का अनुभव है। जब आप पूछते कौन कौन सा शहर गए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से शहर जाने का अनुभव है आपके पास, यही हुआ ना। आप कौन कौन से शहर गए, तो डिटेल्स किधर हुआ? डिटेल्स होगा आप कब गए थे, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। तो पहली बात समझ जाओ ताकि प्रैक्टिस सही मिले। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव बीन टू बोकारो भी एक करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस है, आई वेंट टू बोकारो भी करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस है, अलग अलग जगह पे यूज होते हैं दोनों। आपने मुझसे पूछा हैव यू बीन टू कोलकाता, हैव यू बीन टू बोकारो, तो मैं बोलूंगा यस आई हैव बीन टू बोकारो। यहाँ पर तो यही जवाब होगा, क्लियर है? यहाँ पर तो नहीं होगा आई वेंट टू बोकारो। हैव यू बीन टू झारखंड? यस आई हैव बीन टू झारखंड। वेयर डिड यू गो? आई वेंट टू रांची। हाँ रांची, ओह व्हेन डिड यू गो? दिखा सारा ये कैसे हो गया। तो बस डिसीजन लेना है, और जो मैं बोल रहा हूँ एकदम एक एक लाइन पर डिसीजन लेना है। नहीं डिसीजन ले सकते हो, गलत डिसीजन लोगे, गलत इंग्लिश बोलोगे। ये प्रेजेंट सिंपल जितना सिंपल नहीं है, इजी नहीं है ये। इसमें हर बार तुम्हें डिसीजन लेना पड़ता है कि तुम जो बोल रहे हो इज इट योर एक्सपीरियंस और द डिटेल्स ऑफ दैट एक्सपीरियंस। जब डिटेल्स दोगे तो कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, और जब एक्सपीरियंस बताओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कई लड़कियों से बात की है, ये क्या है, एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस का डिटेल है, एक्सपीरियंस है। इसका मतलब हुआ मुझे कई लड़कियों से बात करने का अनुभव है, मैंने कई लड़कियों से बात की है। तो जब आप अनुभव बोल रहे हैं तो आई हैव टॉक टू मेनी गर्ल्स, आई हैव, इसका मतलब हुआ मेरे पास अनुभव है लड़कियों के मामले में काफी। आई हैव टॉक टू मेनी गर्ल्स, लेकिन आई टॉक टू मेनी गर्ल्स भी एक करेक्ट सेंटेंस है पास्ट सिंपल में। आई टॉक टू मेनी गर्ल्स, ये पास्ट सिंपल है, ये अनुभव नहीं बताता, ये पास्ट के किसी इवेंट के डिटेल्स दे रहा है। जैसे 2 weeks ago I went to a party, it was great fun, at the party I talked to many girls। देखा अभी क्या बोला मैंने, I talked to, मैं कोई अपनी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट की इवेंट की बात कर रहा हूँ, पास्ट में क्या हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। 2 weeks ago I went to a party, it was a great party, I really enjoyed it, I talked to many girls there।
तो कभी ये मत पूछना कि ये सही है कि वो सही, दोनों सेंटेंस सही होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होता है, पास्ट सिंपल भी सही होता है। कहाँ किसकी जरूरत है वो डिसाइड करोगे, फोकस करो मुदस्सिर। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो अनुभव बताने के लिए यूज करते हैं, और पास्ट सिंपल अनुभव बताने के लिए यूज नहीं करते। पास्ट सिंपल का काम होता है पास्ट के किसी इवेंट का डिटेल दे रहे हैं आप, बताइए। एक बार हम एक जंगल में गए, once I went into a jungle, I went very deep, I was feeling very scared, and suddenly I saw a lion in front of me. I saw a lion. मैंने तुम्हें क्या बताया, एक पास्ट की घटना डिटेल दे रहा हूं, पास्ट की घटना आपको बता रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो पास्ट की घटना का डिटेल देते हैं तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करते थे अब तक, पास्ट सिंपल यूज कर ही रहते। अब ये सब हो गया, ठीक है। आज मेरे सामने कोई शेर के बारे में बात कर रहा है, मैं बोलता हूं मैं शेर देखा है, मैंने शेर देखा है, हम शेर देखे हैं, हम शेर। अब इस लाइन से पता चलता है मेरे अनुभव के बारे में। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव सीन अ लायन। I have उसी seen घटना के बारे में बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसका बताने का मेरा उद्देश्य है कि हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हमको शेर देखने का अनुभव है। आई हैव सीन अ लायन। तो इंग्लिश से ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो है क्या हिंदी में, महसूस करो पहले। जो आप बोलना चाह रहे हो वो अनुभव बताना चाह रहे हो या पास की कोई घटना का जिक्र कर रहे हो। सुनो मेरी बात, मैंने लाइफ में एक ही बार शेर देखा है, ठीक है। मैंने बताया ना, एक बार हम जंगल में गए थे, बहुत अंदर चले गए थे, 2008 की बात है, बहुत अंदर चले गए थे और मैंने वहां एक शेर देखा। तो ये पास्ट की घटना का डिटेल कर रहा हूं मैं, तो यहाँ तो पास्ट सिंपल ही बोलना है मुझे। और वही एकमात्र मैंने शेर देखा। लेकिन जब भी कहीं पे कुछ बात होती है कि शेर देखे हैं, तो हम बोलते हैं हाँ हम देखे हैं। तो हाँ अनुभव की बात होती है तो हम बोलते हैं यस आई हैव सीन अ लायन। तो फिर lion. डिटेल को, तो फिर शुरू हो जाएंगे, वंस आई वेंट इनटू अ जंगल एंड देयर आई सॉ लायन। तो पास्ट की घटना का जिक्र करने के लिए पास्ट सिंपल है, लेकिन ये बताने के लिए कि आपको कोई चीज का अनुभव है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। और ये क्यों प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, इसको लॉजिकली अगर सोचो, तो कोई कहना चाहता हम शेर देखे हैं, इसका मतलब हमको पता है शेर कैसा होता है। तो जब पता है तो ये प्रेजेंट में पता है ना, यानी प्रेजेंट से कनेक्शन हो गया ना, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी बातें बोली जाती हैं वो सब हुई होती हैं पास्ट में ही। कहाँ हुई होती हैं, जब मैं कहूं मैंने मैट्रिक पास कर लिया है, तो मैंने अभी किया कि हो गया, अभी प्रेजेंट में कर रहा हूं कि हो गया काम, हो गया। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसका कनेक्शन प्रेजेंट से बन जाता है। और कोई घटना का प्रेजेंट से कनेक्शन ना बने तो वो पास्ट सिंपल में है। ये सब बातें इंग्लिश में नहीं सोचनी, हिंदी में सोचनी है तुम्हें, कि क्या ये कनेक्शन बनता है, क्या ये पास्ट के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं, क्या ये अपना अनुभव बता रहे हैं। ये सारा डिसीजन तुम्हें हिंदी में लेना होता है, एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड इंग्लिश। उसके साथ साथ एक ऑब्जर्व करना, जब भी सेंटेंस बोलना इंग्लिश का या सुनना, तो पूछना अपने आप से कि हिंदी में यहाँ क्या बोलते हैं। ये गलतियां कर करके सीखोगे, कई बार गलतियां करोगे। जहां प्रेजेंट परफेक्ट बोलना चाहिए वहां पास्ट सिंपल बोलोगे, जहां पास्ट सिंपल बोलना चाहिए वहां प्रेजेंट परफेक्ट बोलोगे। और हर बार तुम्हें करेक्ट किया जाएगा तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी अगर तुम गौर से सुनोगे करेक्शन को, फीडबैक को, क्यों गलत है कैसे सही है। तो हर बार थोड़े बेहतर, थोड़े बेहतर, थोड़े बेहतर, 150 बार मिस्टेक करने के बाद तुम परफेक्ट हो जाओगे इस मामले में। तो स्टार्ट पेइंग अटेंशन एंड बी रेडी टू मेक मिस्टेक्स। सब अपने अपने अनुभव के बारे में मुझे बताएं, शहरों के अनुभव। विच सिटीज हैव यू बीन टू, विच प्लेसेस हैव यू बीन टू, और उसके बाद डिटेल्स दे दीजिएगा। कम ऑन तानी, यू फर्स्ट। I I have visited Mumbai
10 years ago, sir. गलत बोल गई। I had. नहीं 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 मेरे बच्चा, आई हैव बीन टू मुंबई या हैव विजिटेड मुंबई, दोनों एक ही बात है। चलिए बात खत्म हो गया। आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव विजिटेड। आप 10 years को क्यों लगाए इसमें, इतना सब सुनने के बाद? Okay, sir. 10 years ago तो पास्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हो आप इसे? I had. रुक जा मेरे बच्चे, आई हैव बीन टू मुंबई हो गया एक्सपीरियंस। आई वेंट देयर 10 years ago, आई वॉज Okay. देयर 10 years ago। अब ये पास्ट सिंपल है, उसमें नहीं ऐड कर सकते 10 years, हालांकि हिंदी में सही लगता है बोलने में, बट इन इंग्लिश इट इज नॉट। हिंदी में सही लगता है, इंग्लिश का रूल क्या है कि एक्सपीरियंस बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम नहीं, इवेंट डिटेल्स नहीं, कब हुआ एक्सपीरियंस ये बताने के लिए नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव विजिटेड मुंबई। गो ऑन Tani, you have been to Mumbai, okay, good. You went there 10 years ago. Yeah. I have been with my family, Come again. my mommy, my papa. Full- I have full- been with my family. तो मेरी बात ही नहीं सुनी लड़की जरा भी ना, सारा हिंदी में मैंने बोला जानबूझ, मैंने क्या बोला, डिटेल्स कौन से टेंस में देना है? I- Past. Past simple. Simple. I went there with my family. हम्म, ये सब शुरुआत में एकदम नया लगता है, समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा सही। मैं आपके परेशानी को समझता हूँ। आप में से कई अपने आप को बोल रहे होंगे कि ऐसे बोल देंगे तो क्या गलत हो जाएगा। आप कुछ नहीं महसूस कर सकते क्योंकि इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश इज नॉट योर। लेकिन जो रूल्स हैं उसको जब फॉलो करने की आदत बना लोगे तो फिर वो फीलिंग आएगी कि क्यों ऐसा अच्छा लगता है, क्यों ऐसा सही लगता है। अभी तो आपको गलत भी सही लग सकता है, इसलिए अभी कोई अपने फीलिंग्स को मत वैल्यू करो, अपने अभी फिलहाल जो बोल रहा हूँ उस रूल को वैल्यू करो। 10 दिन 15 दिन उस रूल को फॉलो करो, फिर अपने आप 15 दिन के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम बदल चुके हो उस मामले में। हाँ बोलो बेटा। I went there for 10 days. Where did you stay? Mumbai is a I big city. I stayed in hotel. Ah, nice. What was the purpose of your Uh, visit? You go. only for traveling, sir. English bolo. We went to Mumbai to see the places, We to went visit, to Mumbai to see places like to visit. Uh, Dadar, Lal Bagh, Juhu Beach. Only for nice. traveling. Very good. I went For to traveling की जगह बोलना चाहिए था, we Nashik. went there to just visit the city. 2+B1 पढ़े ना, पर्पस बताने के लिए। You come to STC to learn English, and they went to Mumbai to visit the places. Yes, sir. Thank you. I Thank you, Tanvi. enjoyed. You enjoyed the experience. Yes, sir. Very good. Thank you. Simran. Okay, so I have been to Jharkhand. It was 3 years ago, and I went there for my mama's bride selection, and um, we went with my grandparents and my mother and my aunt. It was a nice experience. We didn't go in the town. We just went there in the home and we just came back. Very well done, Simran beta. Very well done. The first line was, sir. हाँ हम झारखंड गए हैं। उसके बाद 3 साल पहले गए थे, मामा की शादी के लिए लड़की देखने गए थे। वेरी गुड बेटा, वेरी वेल डन। रंजीत। I have been Delhi.
Ranjit, you are not loud enough. Yes. Sorry, sir. You have to fix your mic. You have to fix your mic, Ranjit. We cannot hear you very loudly, very clearly. Now, clear, sir? No, Hello. not yet. Not yet. Sorry, sir. Okay, Because I am we will outside. come back to you, Ranjit. We will come back to you. Okay, we will come back to you. Okay. Try and remove your earphones, headphones, and external mic. Faizan, what about you, Faizan? Would you like to share your experience of traveling with us? We will come back to you, Ranjit. Sir, I have been Delhi. To Delhi. I've been to Delhi, Mm, Faizan. I have been to Delhi 1 month ago. अरे रे रे नहीं And फैजान, आपने फिर वही गलती कर दी फैजान, तानी वाली गलती। आप ये हिंदी में बोल सकते, इंग्लिश में नहीं बोल सकते। I've yes, been to sir. Delhi, खत्म हो गई, I have been to Delhi. खत्म बात। आगे, I I went went there. I went there 2 months ago 2 months for ago, 2 years ago, interview. 2 months ago 2 months ago. for interview. Yeah, or you could, for an interview is fine, or you could also say to walk in an interview. To walk in an interview. Okay. To walk in an interview. Yes. To walk in an interview. To walk in an interview. Okay. Yes, sir. Another question, sir. Carry on, details दीजिए। कहाँ रुके, किसके साथ गए, Okay. कितना दिन रुके, ऐसा लगा? Yeah. I was uh, I was uh, I was stay I was I there. stayed. I stayed. I stayed at my uh, at m- I stayed I stayed at my brother-in-law, sir. At my Very good. uh, brother-in-law house. Mm-hmm. Yes, and I have uh, I have been there. Uh, I have been there almost 15 or 20 days. नहीं, जो जगह चल रही है, आप जहां पर हैं अभी, आप डिटेल्स दे रहे हैं ना, तो डिटेल्स पास्ट सिंपल Yes, में नहीं, पास्ट सिंपल में दी जाती है फैजान। ऐसा yes, नहीं कि वो yes, sir. सेंटेंस गलत I है, वो was सेंटेंस सही there. है, यहाँ नहीं होना चाहिए। वो सेंटेंस अनुभव के I बारे में है, वो was सेंटेंस yes, नहीं। sir. हाँ। I was there Hmm. 20 days, 15 or Very good, 20 days very good, almost. Faizan. Super, very Yes, sir. nice. Thank you. Ranjit, have you managed to fix your mic? Hello, sir. Okay, I will have to raise the volume here. Go on. Yes, sir. I have been to Delhi. No, sorry. I have been to Delhi, and I went to Delhi for my cousin wedding. In my cousin wedding, I To attend, Ranjit, and everybody mute yourself because the audio is very loud in this room. If anybody else spoke, our ears will explode, okay, because we have turned the volume full for Ranjit. Everybody else, please mute yourself. Mute yourselves. Only Ranjit will speak. Ranjit, पीछे के लेसन आप याद नहीं रखते तो मुझे बड़ी निराशा होती है. I feel very disappointed when you don't use the old lessons. Only in the previous lesson, Unit 11, last 2 pages, we learned infinitive of purpose. ये कह रहे हैं गए थे कजन की वेडिंग को, तो क्यों नहीं बोल रहे आप? I went there to attend my cousin's wedding. yeah. बाकी Yeah, बहुत I सारी went चीजें बोल रहे हैं, there. लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं. I went there to attend my cousin wedding, and I think I after that I visited more places in Delhi, just like Lal Killa
Chandni Chowk and Lotus Temple. And I enjoyed very much, and that's all, sir. ओके रंजीत, जैसे मैं कहता रहा हूँ कि मैंने आपको ऑफर भी किया था क्लास, फिजिकल क्लास, बट यू चोज नॉट टू डू इट, इट वाज योर डिसीजन। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऑफर करता हूँ अपने तरफ से कि भाई आप कैसे बेस्ट कर सकते हैं अपना, उसमें मैं कैसे रोल प्ले कर सकता हूँ। रंजीत, आप इससे बेहतर कर सकते थे और कर सकते हैं बाय बीइंग मोर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज। और फिर से समझना, डिक्लेरेटिव नॉलेज को काउंट ही मत करो। क्या होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज? तो हमको ये आता है, ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं। ओके कोई फायदा नहीं। यू हैव टू बी एबल टू यूज द नॉलेज दैट यू हैव। इफ यू कांट यूज इट, देयर इज नो पॉइंट। खुशी, फैज, मुशर्रफ, ज़ेबा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go on. Tell me about your experience. I have been to Delhi many times, Zeba, remove the but microphone. Zeba, remove the microphone, please. Yes, Yeah, better. I have telling many times, but the last time I went in February. The last time I went was in February. The last time I went was in February. But the last time I went was in February. My sister lives in Delhi. I live with her. Hmm. That road is good and big. I like Delhi. It both cheap and expensive market. There are many historical places. I have visited almost every place in Delhi. एक सेकंड। इस जगह पे ये सेंटेंस सही नहीं है। अपने आप में ये सेंटेंस सही है, इस जगह सही नहीं। पता क्यों नहीं सही है? क्योंकि तुम तो अभी डिटेल्स दे रहे हो दिल्ली जाने के बारे में। डिटेल्स में प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करने लगे? डिटेल्स के लिए पास्ट सिंपल। तो बेटा ज़ेबा, क्योंकि आप इस जगह पे दिल्ली जाने के डिटेल्स दे रहे थे ना, अभी पहले तो बोल दिया आई हैव बीन टू दिल्ली several times. The last time I went there was in da da da. Okay, and now you're giving us all the details. I went there, I stayed here, I was with this person, I went to almost every market. ऐसे बोलना था बेटा। यहाँ पे वो सेंटेंस सही है, यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज क्या किस चीज के लिए होता है? एक्सपीरियंस बताने के लिए, एक्सपीरियंस का डिटेल नहीं। अभी तो आप डिटेल दे रहे थे ना ज़ेबा बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पर ये सेंटेंस को कैसे बोलना था? I went to I went almost went all the to markets. yes, I went to visit almost every place in Delhi. Very good, very nice ज़ेबा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता सकता हूँ आपको कि इतनी आसानी से मैंने कई बार पढ़ा है बेटा। सिखाना भी अपने आप में एक लर्निंग ये एक्सपीरियंस होता है कि कैसे बेहतर से बेहतर सिखा सकते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड टू इंक्लूड अ लिटिल बिट हिंदी इन माय कॉन्वर्सेशन, इन माय टीचिंग। और ये मैंने नया रिसेंटली इंक्लूड किया है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स देते समय मैं हिंदी में बोलूंगा, ताकि कोई कितना भी ये स्लो स्टूडेंट रहेगा इंग्लिश में, वो कॉन्सेप्ट तो सही पकड़ेगा। बाद में जितनी मुश्किल हो, कॉन्सेप्ट सही दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए मैंने हिंदी में बातें बताई और मैं अभी बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ अंदर से कि मैंने जिस तरह से बता दिया आप लोगों को, आप बहुत कम कंफ्यूज होंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में। लेट्स सी, मुशर्रफ, योर टर्न। थैंक यू ज़ेबा बेटा, वेल डन। I have been to Kolkata. I went there 2 years ago. I stayed at Khidirpur. I went there to visit my cousin wedding. Visit? No, attend. I went there to attend my cousin's wedding. Cousin की apostrophe s, cousin की शादी। I went there to attend my cousin wedding भी नहीं। Ranjit said cousin wedding. No, cousin's wedding.
Apostrophe S for Yeah. possession. After wedding, I visited many places like Millennium Park. Did Sand you go to the City. park where boys and girls sit very close to each other? There is a park there in Kolkata where Yeah, boys Millennium and Park. Millennium Park. Okay, okay. I don't know the name, but I know that there is a park. When I went there, my nephews and nieces, they were all grown up. They were teenagers and in their 20s. They said, "Chal mama, दिखाते हैं आपको मस्ती." मैंने कहा नहीं जाना. Oh my God. So Musharraf, you enjoyed your experience in Kolkata. Yeah, it was really great, sir. Okay. Khushi. Yes, सर sir. एक कंफ्यूजन है सर पे Yes, Zeba. सर वेंट तो पास्ट है तो फिर वेंट के साथ वाज हाँ, मैं बता देता हूँ बेटा. बहुत अच्छा सवाल था. मैं सोच रहा था उसको डिटेल्स उसके बारे में करें. The last time I went there was in December. The last time I went there was in December. ठीक है? The last time I went there was in December. The last movie I saw was in December. The last movie I saw was in December. Okay? The last movie I saw was हम आपके हैं कौन? Okay. तो देखो कैसे was को यूज कर रहे हैं. इसके मतलब उसके पहले सारा चीज जो बोला गया वो सब्जेक्ट बन गया. ठीक है? और एक और सेंटेंस सुन लो बेटा. I last went there in December. I last went there in December. यहाँ कोई और सब्जेक्ट I went there in December. सही है? I went there in December. सही है? Went के पहले last लगा लो. I last went there in December. लेकिन सेंटेंस को the last time से शुरू करो और बोलो the last time I went there was in December. बहुत इंटरेस्टिंग हुआ ये. मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ये वाली आखिरी वाली. ओके. और प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दे देना कैसे मैंने करवाया है. 5-10 मिनट 15 मिनट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. कई टीचर्स नहीं समझ पाएंगे ये. मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की फीलिंग है. अगर लैंग्वेज की फीलिंग है तुम सही कर सकते हो. अदरवाइज यू कांट. वी हैव ओनली 1 minute to go. So I'm getting a little bit, I'm feeling a little rushed. ध्यान से सुनना ज़ेबा. The last time I saw her यस was 2 years ago. The last time I saw her was 2 years ago. यहाँ was लग रहा है. पैटर्न पे ध्यान दो. पूरा शुरू से कैसे चल रहा है. The last time I saw her was 2 years ago. I last saw her 2 years ago. I last saw her 2 years ago. लिख लो और प्रैक्टिस कर लेना इसी दोनों को. And I will not mind helping you with this pattern tomorrow a little bit. Okay? बहुत अच्छा पैटर्न है. ये कैसे वहां was आ जाता है. ये जब आपका दिमाग में सब्जेक्ट और वर्ब का आइडिया क्लियर होता है. इस सब्जेक्ट हिस्सा क्या होता है एक सेंटेंस का तो आप ये आसानी से कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी ग्लैड ज़ेबा कि आपने ये इस चीज को नोट कर लिया और आपने पूछ लिया. इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा. कीप इट अप. एंड गाइस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एनी Please don't फर्दर. forget to share the recording. I will definitely share last part, second part at least. Thank Okay. Thank And you. we will continue tomorrow, everyone. Bye bye. Take care of yourselves. The rest of you will speak tomorrow. Okay. Bye, sir. Bye थैंक यू bye. सर. Bye bye. Bye bye. Bye, sir. Bye bye. Faizan. Bye bye, everyone.